امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے۔ کہتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ اور امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران گفتگو۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے الزام لگایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران یہ گفتگو، ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے الزام لگایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران گفتگو، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ۔ کہتے ہیں امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے الزام لگاتے ہوئے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب کر رہے تھے اور خطاب میں ان کی جانب سے یہ بات بولی گئی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دیا گیا ہے، پاکستان کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن یہ حوالہ ایک اچھی سینس میں نہیں دیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب میں گفتگو۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا کہیں بھی ذکر موجود تک نہیں ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ بات بولی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ دیا گیا۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کہا کہ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا اور کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بالکل بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ۔ امریکی صدر نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران یہ گفتگو کی گئی ہے۔ امریکی صدر کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا کہیں بھی کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر میں پاکستان کا حوالہ۔
अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में ले लिया और उनकी जानिब से यह कहा गया कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान ये गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़तरनाक है। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब कर रहे थे। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की तकरीर में पाकिस्तान का हवाला। अमेरिकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान ये गुफ्तगू। अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी मौजूद नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर में पाकिस्तान का हवाला और पाकिस्तान का हवाला देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ दिया है। अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान ये गुफ्तगू सामने आई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया। कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान गुफ्तगू। अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर में पाकिस्तान का हवाला। अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है और अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान गुफ्तगू। अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर में पाकिस्तान का हवाला। अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान गुफ्तगू आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान की कुर्बानियों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जानिब से कुर्बानी दी गई, लेकिन इसको सराहा अमरीका की जानिब से नहीं जा रहा है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक अमरीकी सदर की जानिब से करार दे दिया गया है और अमरीकी सदर की जानिब से रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में ले लिया गया और अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान गुफ्तगू। कहते हैं कि इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हर्जा सराई पाकिस्तान के मुताल्लिक की गई है अमरीकी सदर की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का भरपूर साथ दिया गया और इसका कहीं भी अमरीका की जानिब से कोई जिक्र नहीं किया जाता है। 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की
सिक्योरिटी को इससे शदीद खतरात लाहक हुए, लेकिन इसको अमरीका की जानिब से सराहा नहीं गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर में पाकिस्तान का हवाला और अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। हर्जा सराई करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ये कहा गया अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि खदशा है कि कोई भी इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान गुफ्तगू। अनस मलिक से इस मुतालिक जानेंगे। अनस, पाकिस्तान की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अमरीका की जानिब से अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। मजीद उन्होंने क्या कहा? जी शुक्रिया। बिल्कुल, अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से ये एक प्राइवेट इवेंट था डोनर्स के हवाले से, जहाँ पे वो कांग्रेस के जो मुंतज़मीन हैं उनसे खिताब कर रहे थे और पाकिस्तान को चीन के तनाजुर में उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, वो गैर महफूज हाथों में है। इंतहाई गैर मुनासिब कमेंट्स उनकी जानिब से दिए गए, उनके जो कमेंट्स दिए गए, जिसके हवाले से सीनियर अफसरान जो हैं वजारत खारजा का, उनका कहना है कि बिल्कुल ये समझ से बालातर है कि इंतहाई गैर मुनासिब जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो किस तनाजुर में दिए गए हैं, क्योंकि वक्तन फवक्तन जो अमरीकी सीनियर हुक्काम हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को हमेशा मयारी करार दिया गया है। बल्कि ना सिर्फ अमरीकी हुक्काम बल्कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनकी जानिब से भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंतहाई जो है वो मयारी करार दिया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करार दिया गया है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि अमरीकी सदर अपना एक पहले वो नायब सदर भी रह चुके हैं, तो उनकी पाकिस्तान के हवाले से कुछ बाइसेस हैं और वो फिर वक्तन फवक्तन आया भी होते हैं। इसी की तनाजुर में हमने देखा कि आज की तारीख तक पाकिस्तान में दो हुकूमतें आ चुकी हैं। ना उन्होंने पहले इमरान खान की से डायरेक्टली बात की और अब अभी तक आज की तारीख से जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक शहबाज शरीफ से भी उन्होंने कोई फॉर्मल एक्सचेंज नहीं किया, माँ सिवाय इसके कि वो जो न्यूयॉर्क में जब वो डिनर था, इनफॉर्मल डिनर था, तब तक उसी में उनकी बातचीत हुई, उसके अलावा उन्होंने उससे एंगेज नहीं किया। तो वो उनकी प्री कंसीव नोशन के बारे में बताता है और अमेरिका की जानिब से जो बाइसनेस है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, आई एम श्योर इसके ऊपर पाकिस्तानी वजारत खारजा जो है अब से कुछ देर बाद भी फॉर्मली रिएक्ट भी करेगा। जी अच्छा, अनस मलिक ये बताएगा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा? वजारत खारजा की जानिब से क्या बताया जा रहा है? वजारत खारजा के सीनियर अफसरान हैं उनका यही कहना है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है जिसके मुतालिक इंतहाई गैर मुनासिब कमेंट्स जो दिए गए हैं अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर हैं, ये गैर मुनासिब कमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं और ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर रिकग्नाइज्ड है कि ये मेयारी है, ना कि सिर्फ मेयारी है बल्कि मेयार से ज़्यादा इसके सिक्योरिटी चेक्स हैं वो इन प्लेस हैं। और ये पाकिस्तान नहीं कहता, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, वो ये बात एक्नॉलेज करते हैं। बाकी जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के जो और बॉडीज हैं वो एक्नॉलेज करती हैं। यूनाइटेड नेशंस की अपनी और जो सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो बॉडीज हैं, डिसआर्ममेंट की जो बॉडीज हैं, वो इस बात को रिकग्नाइज करती हैं। तो जब इतने सारे आलमी इदारे जो हैं जिसके बहुत ज़्यादा चेक्स होते हैं वो रिकग्नाइज करते हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान के वजारत खारजा कहते हैं कि अफसरान कहते हैं कि ये इंतहाई गैर मुनासिब कमेंट्स हैं, इंतहाई गैर मुनासिब कमेंट्स हैं। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। बहुत शुक्रिया अनस मलिक तमाम दर तफसीलात के लिए।